तो लास्ट टाइम जो थ्योरी तो मैंने बता चुका था, एक थोड़ा सा रह गया था उसमें अबाउट द ASME कोड, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन रह गया था. सो दिस इज द ASME code for shaft design. One important approach in designing the transmission shaft is to use the ASME code, and according to this code, the permissible shear stress tau max for the shaft without keyway is taken as 30% of the yield strength in tension and 18% of the ultimate strength of the material, whichever is minimum. So therefore, tau max is 0.30 SYT and tau max equal to 0.18 SUT, whichever is minimum has to be as per 9.114, whichever is minimum वो हमें लेना पड़ेगा. If the keyway is present in the above value, अगर से keyway present है उसमें in the above values are to be reduced by 25%. So according to ASME code, the bending and torsional moment are multiplied by KB and KT respectively. So KB जो small KB दिख रहा है आपको और small KT, these are the nothing but the shock and fatigue factors. Shock and fatigue factors is to be considered whenever we design the shaft according to ASME code. And the ASME code is based on the maximum shear stress theories of failure, जो हमने मैक्सिमम shear stress theory पढ़ी थी पिछले लेक्चर में. वही इक्वेशन में मॉडिफाई करते हैं the equation, and this equation is modified equation is written as shear stress maximum equal to 16 divided by pi d cube under root of kb into mb square plus kt into mt square. So kb and kt, these are the shock and fatigue factors. They are to be considered while considering the design of the shaft based on the ASME code. So 9.15 is the equation when you consider the design of the shaft based on ASME code. So these values of kb and kt are to be there. As you can see, kb is a combined shock and fatigue factor applied to bending moment, and kt is a combined shock and fatigue factor for the torsional moment. So the values of kb and kt for rotating shaft are given 9.2 table. So in the 9.2 you can see load is gradually applied, load is suddenly applied, and load is minor shock, and load is suddenly applied, heavy shock. Value of kb and kt, these are standards values, that is 1.5 you can see for load gradually applied, and kt is 1 for load is gradually applied. Similarly for load suddenly applied, 1.5 to 2, any value in between that, and 1 to 1.5 for kt. So these values are to be standard values to be taken for the condition of the load, and it may be sometimes it may be given in the problem itself, value of kb and value of kt is this much given in the problem. So accordingly the equations are modified 9.14 and 9.15. The rewriting the above equation considering the shock and fatigue factor, you can see the equations. Shear stress maximum 16 by pi d cube under root of kb into mb square plus kt into mt square, and sigma 1 16 by pi d cube under in bigger bracket kb mb plus under root of kb mb square plus kt mt square. So these equations are considered for the combined shock and fatigue factors. So again in the similar way we can have equivalent torsional moment. अंडर रूट में जो फैक्टर है उसी को हम इक्विवेलेंट टॉर्शनल मूवमेंट बोलेंगे, और
यहाँ पर इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट, ये जो दिख रहा है आपको सेकेंड नंबर में एक्सप्रेशन, के बी एम बी प्लस अंडर रूट ऑफ के बी एम बी स्क्वायर प्लस के टी एम टी स्क्वायर, that is equivalent bending moment for when the shaft is subjected to fluctuating loads. So these are the consideration which I'll consider. So we can have one of the problem related with that. If you see the problem 9.1, you can have to, suppose you want to note down, suppose you can note down those students who want the problem. The layout of transmission shaft carrying the two pulleys B and C, layout of transmission shaft carrying the two pulleys B and C, capital B and C, and supported on bearing A and D. So at A and D there is a bearing as shown in figure 9.3. So 9.3 की जो फिगर है, मतलब दिस फिगर, ये आपको दिया रहेगा. You see the figure. Those who want they can draw the figure. जैसे बेरिंग दिखाया है, ए की जगह पर क्रॉस किया है और डी की जगह पर बेरिंग दिखाया है, और बी ए कैपिटल बी की जगह पर एक पुली है और कैपिटल सी की जगह पर एक पुली लगाई गई है. और उसी शाफ्ट का साइड व्यू दिखाया है. देयर आर टू सर्कल्स, एक छोटा वाला सर्कल जो 250 डायमीटर का है जो कि सी पुली का है, और 500 मिलीमीटर का डायमीटर जो कि पुली बी पुली का है. ठीक है, तो ये डायग्राम ये जो पूरे डायमेंशंस है ये प्रॉब्लम में दिए है, आपको फिगर दिया है. मतलब 200 मिलीमीटर पे ए से लेके बी का है, 600 मिलीमीटर बीच वाला है, और 200 मिलीमीटर फिर सी एंड डी का डिस्टेंस है. डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस इज आल्सो गिवन. जो बेल्ट लगाए गए उसके ऊपर, जो छोटे वाले पुली के ऊपर हॉरिजॉन्टल है और बड़े वाले पुली के ऊपर वर्टिकल है, ये प्रॉब्लम में मेंशन भी किया गया है. ओके, तो हम रीड करेंगे प्रॉब्लम. द पावर is to be supplied to the shaft by means of vertical belt on the pulley B. तो पुली बी की जगह पर हम पावर सप्लाई करेंगे, विच इज देन ट्रांसमिटेड टू पुली सी. वहाँ से पावर ट्रांसमिट होगा बी से लेके सी की तरफ, कैरिंग द हॉरिजॉन्टल बेल्ट. जहाँ पर हम सी कंसिडर करेंगे, सी मतलब क्या है, छोटी वाली पुली है, वहाँ पर क्या बोल रहा है वो, कैरिंग हॉरिजॉन्टल बेल्ट. हॉरिजॉन्टल बेल्ट मतलब यू कैन सी द डायरेक्शन P3 और P4, इसका डायरेक्शन हम देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल है ना. एंड व्हेन यू सी द डायरेक्शन ऑफ P1 एंड P2, their direction is vertical because it is mentioned in the problem. The power is supplied to the belt, sorry, to the shaft by means of vertical belt on the pulley B, which is then transmitted to the pulley C carrying the horizontal belt. So it is understood. The maximum tension in the belt on the pulley B. तो पुली बी के ऊपर जो मैक्सिमम टेंशन है वो कितना न्यूटन बोल रहा है, 2.5 किलो न्यूटन का फोर्स आ रहा है. मतलब क्या हो रहा है, जो हम पुली बी की बात करते हैं तो वहाँ पर P1 और P2 ये दो फोर्स हमें दिखते हैं. तो P1 और P2 में जो मैक्सिमम है उसकी वैल्यू 2.5 किलो न्यूटन का टेंशन है उस बेल्ट में. ओके, 2.5 किलो न्यूटन इज द मैक्सिमम टेंशन present in the bigger pulley. It may be P1 or P2, so we can have consider the maximum tension. The angle of warp for both the pulleys is 180 degree. इसका मीनिंग क्या है, यू कैन सी द डायग्राम, जो सर्कल वाले डायग्राम है यहाँ पे 250 और 500 दिखाया है आपको डायमीटर, वहाँ पर एग्जैक्टली 180 डिग्री में हमें बेल्ट वार्प करना है ना. द थीटा एंगल जो दिख रहा है हमें ऊपर में, यू कैन सी दिस, यहाँ पे P1 और P2 जो है एग्जैक्टली एंगल जो दिख रहा है ऊपर में ये एग्जैक्टली 180 डिग्री है. सिमिलरली जब P3 और P4 के डायरेक्शन ऑफ फोर्स देख रहे हैं तो P3 और P4 में भी जो एंगल बन रहा है लेफ्ट हैंड साइड में वो भी
देख रहा है कि 180 डिग्री है, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ थीटा है, जिसे हम बेल्ट में पढ़े, काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन में भी हम बेल्ट में थीटा दिया रहता है कि बेल्ट कितना पुली के ऊपर वॉर्प हुआ है, तो एंगल ऑफ वॉर्प है वो थीटा एंगल दिया है 180 डिग्री। एंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.24। सो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है, म्यू का वैल्यू दिया है 0.24। द शाफ्ट इज मेड अप ऑफ प्लेन कार्बन स्टील 30C8। 30C8 का शाफ्ट का मटेरियल है। इसका एस वाई टी दिया है 400 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। तो एस वाई टी का वैल्यू वो लेना है। एंड द फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का वैल्यू 3 दिया है। डिटरमाइन द शाफ्ट डायमीटर ऑन स्ट्रेंथ बेसिस। तो डायमीटर ऑफ शाफ्ट हमें निकालना है कंसिडरिंग दिस फोर्सेस। सो इज इट क्लियर फ्रॉम द डायग्राम, कि डायग्राम दी रहेगी आपको एग्जामिनेशन में भी कि along with the problem statement. So we should have to draw this diagram whenever you are having the notebook. See the distances. A से लेके B का 200 है, B से लेके C का 600 है, और C से लेके D का 200 है। Diameter of smaller pulley is 250 और bigger pulley is 500, as well as the direction of P1, P2 and P3 and P4, they are given. So let us start with the design. So हमारे पास पहला काम है, यहाँ पर गिवन डेटा जो दिया है, इसमें एस वाई टी का 400 न्यूटन पर एम एम स्क्वेयर है एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3। तो इसके हिसाब से हम ये निकालेंगे कि परमिसिबल शियर स्ट्रेस कितना रहेगा। सो वी कैन सी स्टेप नंबर 1, परमिसिबल शियर स्ट्रेस टाउ इक्वल टू एस वाई एस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। एस वाई एस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी is equal to 0.5 SYT upon factor of safety. Put up the values. SY 0.5 multiplied by SYT. SYT is given in the problem 400 divided by 3. So if you use the calculator, 0.5 multiplied by 400 divided by 3, you can get the permissible shear stress. It is coming out 66.67 Newton per mm square. If you do in calculator, you can cross check the values. Okay, I think it is coming. So once you know the permissible shear stress, we'll start to the step 2, torsional moment. Torsional moment में हमें दिया है कि प्रॉब्लम में क्या दिया है, P1 इक्वल टू 2.5 किलो न्यूटन, है कि नहीं। P1 का वैल्यू यहाँ पे डायग्राम में निकल, P1 का वैल्यू, इफ यू सी द डायग्राम, P1 टेंशन इन द बेल्ट, वर्टिकल बेल्ट में जो टेंशन है वो दिया है प्रॉब्लम में 2.5 किलो न्यूटन। सो सपोज P1 is equal to 2.5 kilo Newton. So convert into Newton, multiplying by 1000, this 2500 Newton. अभी जब हमें ये इक्वेशन हमें पता है कि P1 by P2 equal to e raised to mu theta. This equation is already known. If you remind the kinematics of machine, that is the chapter of belt, है ना। बेल्ट का चैप्टर हमने पढ़ा है, उसमें हमने इक्वेशन यूज किया होगा T1 by T2 equal to e raised to mu theta. If you remember the brakes and dynamometer chapter in kinematics of machine, T1 by T2 equal to e raised to mu theta. The same equation is there. P1 by P2 है is equal to e raised to mu theta. So mu का वैल्यू है दिया है प्रॉब्लम में 0.24, और थीटा का वैल्यू क्या बोला मैंने, 180 डिग्री बोला था, है ना। एंगल इज 180 डिग्री, सो 180 डिग्री इज हाउ मच, इट इज पाई, in terms of radian it is pi. So if you calculate P1 by P2 in your calculator, it is come out as 2.125 e raised to 0.24 pi। अगर से करते हैं हम तो वो आता है 2.125। ये तो आ ही जाएगा आपका शायद, क्योंकि यू नो द यूज द कैलकुलेटर।
तो इनडायरेक्टली हमें क्या पता है, P1/P2 2.125 आ रहा है ना, आ रहा है कि सभी का आ रहा है शायद, ई रेस टू आ रहा है, ओके जो भी आएगा डिजिट्स। तो ये हमें P1/P2 2.125 आ रहा है। तो P2 क्या लिख सकते हैं, P1/2.125। सो P1 का वैल्यू हमें दिया है प्रॉब्लम में 2500 न्यूटन, 2500 न्यूटन डिवाइडेड बाय 2.125। इफ यू डू, हमें P2 का वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगा। यू कैन डू द कैलकुलेशन, चेक आउट द वैल्यू P2 and tell me the value. 2500 divided by 2.125. ओके, तो 1176.47 न्यूटन इट इज द वैल्यू ऑफ P2। तो हम यहाँ से सोच सकते हैं कि यहाँ पे P1 क्या है, मैक्सिमम टेंशन है इसलिए उसका वैल्यू ज़्यादा है, और P2 क्या है, मिनिमम टेंशन है इसलिए वैल्यू उसका कम है ना। 2500 न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है P1 में, और 1576 का P2 में एक्ट हो रहा है, मतलब वो मिनिमम टेंशन है, जिसे हम बेल्ट बेल्ट ड्राइव में भी पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन में। तो ये निकाल लिया। उसके बाद में हमने टॉर्क निकालना है। द टॉर्क सप्लाइड टू द शाफ्ट इज गिवन बाय, जैसे टॉर्क कितना रहेगा, एम टी इक्वल टू, राइट डाउन द इक्वेशन, एम टी इक्वल टू P1 माइनस P2 इंटू R1। एम टी इज इक्वल टू P1 माइनस P2 इंटू R1, दैट इज द टॉर्क सप्लाइड टू द शाफ्ट। इक्वेशन भी हमने पढ़ चुके हैं थ्योरी ऑफ मशीन में कि P1 माइनस P2 क्या हो रहा है, यहाँ पर डायग्राम में हम देखते हैं P1 माइनस P2 क्या हो रहा है, डिफरेंस ऑफ फोर्स, फोर्स मल्टीप्लाई बाय रेडियस। R1 क्या लिया है, R1 का, R1 क्यों लिया है, क्योंकि वो मैं उसका P1/P2 R1 से रिलेटेड है ना, और P3 और P4 किससे रिलेटेड है, R2 से रिलेटेड है। P3 and P4 is related with the R2 and P1 and P2 is related with the R1, इसलिए R1 लिया है। तो पुट अप द वैल्यू, R1 क्या रहेगा, यहाँ पर 500 का डायमीटर है तो R1 का वैल्यू 250 रहेगा, और P1 और P2 का वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट किया है। तो टॉर्क कितना आया है, न्यूटन मीटर में आएगा। यस, एनीबडी? थ्री थ्री जीरो 2.5। so the value is, write down the unit Newton mm, that is the torque. Then we go for the step number 3. Write down the step number 3, bending moment. Step number 3, bending moment. तो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन के लिए हमें और एक कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे जैसे मैं बताया था कि P3 माइनस P4, डायग्राम में हम देखते हैं कि P3 माइनस P4 ये क्या हो गया, नेट फोर्स हो गया है ना। P3 माइनस P4 इज अ नेट फोर्स मल्टीप्लाई बाय R2 रेडियस, मल्टीप्लाई बाय R2 is a radius, that is equal to mt, that is equated to mt। अभी ये इक्वेशन में mt का वैल्यू पुटअप करो, R2 का वैल्यू कितना है, छोटा वाला है, छोटा वाला रहेगा R2, और 250 डिवाइड बाय 2, 125 है ना। 250 इज अ डायमीटर, so 125 इज अ रेडियस, और mt का वैल्यू हमें पता ही है। तो कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ फोर्स P3 माइनस P4। ओके, डिफरेंस ऑफ फोर्स मिल गया हमें P3 माइनस P4। सो अभी एक इक्वेशन हमें पता हो गया P3 माइनस P4। अभी दूसरा इक्वेशन हमें ये बोलता है P3 अपॉन P4 इक्वल टू ई रेस टू म्यू थीटा, ठीक है। सेकंड इक्वेशन हमें क्या बोलता है, ये हमें इक्वेशन, जनरल इक्वेशन पता ही है हमें,
जैसे हमने P1 बाई P2 को ई रेस टू म्यू थीटा से इक्वेट किया, वैसे ही हम P3 बाई P4 के बारे में भी लिख सकते हैं। P3 बाई P4 इक्वल टू ई रेस टू म्यू थीटा। म्यू का वैल्यू लिखना है 0.24, थीटा का वैल्यू लिखना है पाई, बिकॉज 180 डिग्री यहाँ पर भी है, तो हमें सेम वैल्यू मिलेगा, है ना, P3 बाई P4 का जो अपने P1 बाई P2 का मिला है। देखो P1 बाई P2 का जो वैल्यू मिला है 2.125, वही वैल्यू P3 बाई P4 का मिलेगा, बिकॉज म्यू एंड थीटा आर सेम 2.125। सो P3 बाई P4 हमें पता है ना, और P1 बाय, तो P1 P3 और P4 के वैल्यूज निकालो। P3 कितना आ रहा है, अच्छा 2.125, 5000, 5000, ओके 5000.00 जो वैल्यू है आपकी वो लिख सकते हैं। सो P3 ओके न्यूटन में है, और P4 भी न्यूटन में निकला। यहाँ पर भी हम ये देख सकते हैं कि P3 इज अ मैक्सिमम टेंशन, जिसे 5000 है, और P4 इज ऑल्सो ए मिनिमम टेंशन 2352 न्यूटन। तो यहाँ पर हमने सारे फोर्सेस निकाल लिए, P1 P2 P3 एंड P4, जो कि यहाँ पे अननोन थे। डायग्राम में P1 दिया था सिर्फ, है ना, तो P1 दिया था तो हमने P2 निकाला, और P3 निकाला, और P4 निकाला। जो भी फोर्सेस अननोन थे उसके वैल्यूज हमने फाइंड आउट किए। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर अगर से वेट दिया होता, मान लो यहाँ पे अगर से पुलिस का वेट दिया होता, यहाँ पे जो पुलिस दिए है, यहाँ पर बी और सी के अगर से पुली लगाई है, उन पुली का वेट यहाँ पर दिया होता प्रॉब्लम में, तो कंसिडर किया होता। प्रॉब्लम में वेट दिया नहीं है, इसलिए हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे। सो निग्लेक्टिंग द वेट ऑफ द पुली, है ना, निग्लेक्टिंग द वेट ऑफ द पुली, सो द डाउनवर्ड फोर्स एट द पुली बी क्या हो जाएगा, अगर से वेट हमने नहीं है, वेट इक्वल टू 0 कंसिडर करते हैं, तो बी के जगह पर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, पुली बी के जगह पर P1 प्लस P2 बराबर है। यू कैन सी द डायग्राम के तरफ जाते हैं, पुली बी को देखते हैं, वेट ऑफ द पुली को निगलेक्ट करते हैं, तो वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर से नीचे की तरफ जो फोर्स आएगा वो P1 प्लस P2 आएगा, बराबर। तो यहाँ पे हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे। नीचे वाली डायग्राम देखो, सेम डायग्राम हम प्रोजेक्ट किए, यहाँ पे वर्टिकल प्लेन जो लिखा है वहाँ पर 3676.47, ये जो वैल्यू निकाली है, ये एडिशन ऑफ P1 प्लस P2 की वैल्यू है। दिख रहा है यहाँ पर P1 एंड P1 प्लस P2 3676 Newton is the value of P1 plus P2. 1 minute. You can call is there. Hello. आपको डिटेल गाइडलाइन आपको व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा ना, उसमें दिए जाए, ठीक है ना। आप कौन से सेमेस्टर के हो, फर्स्ट सेम ना, फर्स्ट सेम का आएगा आपका 40 मार्क का, 40 क्वेश्चंस रहेंगे आपके, अरे 20 क्वेश्चंस रहेंगे आपके 40, हाँ आधे घंटे में, हाँ 20 क्वेश्चन। बाकी चीजें आप जो फर्स्ट ईयर से है संबंधित तिवारी सर से कॉन्टेक्ट कीजिए, ठीक है। सो यहाँ पर हम P1 प्लस P2 का वैल्यू 3676 आया है एट द पॉइंट बी।
Similarly, the force in the horizontal plane at पुलिस सी, तो पुलिस सी के जगह पर हम फोर्स निकालते तो क्या हो जाएगा, वो P3 प्लस P4 हो जाएगा. सो P3 प्लस P4 आ रहा है 7,352 न्यूटन. सो P3 और P4 का एडिशन करो. यू कैन ऐड द P3 एंड P4, जो कि सी, पुलिस सी के जगह पे आएगा. तो यू कैन सी नीचे वाली डायग्राम हॉरिजॉन्टल प्लेन की. पहले आप डायग्राम ड्रॉ करो. डायग्राम ड्रॉ करके के नोटबुक में आपने वर्टिकल प्लेन की डायग्राम ड्रॉ करो. यहाँ पे एक लाइन निकालो, है ना. लाइन निकालने के बाद बी के जगह पे 3,676. ठीक है. और नीचे में वैल्यूज हमें पता नहीं है, खाली डायरेक्शन पता है. ठीक है. और दूसरा हॉरिजॉन्टल प्लेन निकालो, वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो हॉरिजॉन्टल प्लेन में. और वहाँ पर सी की जगह पर, सी की जगह पर क्या करोगे, P3 और P4 दोनों फोर्स का एडिशन करो. सी की जगह पर दूसरी वाली डायग्राम जो रहेगी ना हॉरिजॉन्टल प्लेन वाली, उसमें P3 प्लस P4 का एडिशन करो. इट इज कम आउट एज 7,352. आ रहा है. अभी फिलहाल डायग्राम ड्रॉ करो सिर्फ. नीचे के वैल्यूज मत लिखो, डोंट राइट द बॉटम वैल्यूज जैसे. ठीक है. नीचे में जो वैल्यूज आ रही है 2,941, 735, 1,470, 5,882, ये वैल्यूज आपको लिखना नहीं है. डोंट राइट दैट. लिखना क्या है आपको मैं एक पीडीएफ दिखा था, मेरे पास एक ये है जो मैंने उसके रिएक्शंस कैसे निकाले हैं. मतलब यहाँ पर क्या रहेगी आपकी 2,941 है ना, 2,941, ये क्या है, रिएक्शन एट द ए है. और 735 ये क्या है, रिएक्शन एट द डी है. तो वैल्यूज कैसे निकालना है, मैंने एक मेरे पास भी मैं लोड करके रखा हूँ, मैंने आपको उसके कैलकुलेशन बताता हूँ मैं. फिलहाल आप क्या कीजिए, ये बता रहा हूँ कि आपको डायग्राम निकाल लीजिए वर्टिकल प्लेन की और हॉरिजॉन्टल प्लेन की. इज इट क्लियर? यस अनिकेत. आपको सिर्फ डायग्राम निकालना है. वर्टिकल प्लेन का एक लाइन निकाल लीजिए. वहां पर ऊपर से 3,676 लिखना है बी के जगह पर, और सी के जगह पर हॉरिजॉन्टल प्लेन में 7,352 लिखना है. ठीक है. और डिस्टेंसेस क्या लेंगे, डिस्टेंसेस लिखना है, जो भी डिस्टेंसेस लिए हैं ऊपर में. ठीक है, वो लिखना है. तो मैं एक पीडीएफ है मेरे, ये है मेरे पास स्क्रीनशॉट में, वहाँ पे जाता हूँ कि रिएक्शन कैसे निकालते हैं. ओके. यहाँ पर बुक में दिया नहीं है. मैं इसे PDF पे बताता हूँ. यहाँ पर मैंने आपको जो बताया था पहली वाली डायग्राम, जो वर्टिकल प्लेन बता रहा था मैं, तो वर्टिकल प्लेन लिखना है, एक लाइन निकालना है ABCD, है ना. वो लाइन निकालने के बाद ABCD, वहाँ पर डिस्टेंस दिया है प्रॉब्लम में 200, है ना, ए से लेके बी का, और बी से लेके डी का 800 डिस्टेंस दिया है प्रॉब्लम में. बराबर है. और ऊपर का वैल्यूज जो है 3,676 दिया है. इज इट क्लियर? और नीचे में रिएक्शन है RA ए के जगह पर, और RD डी के जगह पर. इज इट क्लियर? यस अनिकेत. ओके. तो अभी यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन. राइट डाउन द इक्वेशन. RA प्लस RD इक्वल टू 3,676. राइट डाउन. नीचे से जो RA प्लस RD क्या हो जाएगा, डायरेक्शन है नीचे से ऊपर. ठीक है नहीं. RA प्लस RD इक्वल टू 3,676, 3,676.
इक्वेशन नंबर 1। अभी राइट डाउन टेकिंग मोमेंट अबाउट ए। सर मोमेंट जो है एक ही अबाउट लेंगे ना हाँ, इसमें? एक ही जगह पे लेना। हाँ, एक पे लेना है, वही बता रहा हूँ ना। यू कैन सी द नेक्स्ट लाइन, टेकिंग मोमेंट अबाउट ए। एक कैपिटल ए की जगह पर मोमेंट लेंगे तो क्या आ रहा है देखो, 3676.47 मल्टीप्लाई बाय 200। यू कैन सी द डायग्राम, 3676 मल्टीप्लाई बाय 200 इज द डिस्टेंस, जो कि क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है ना, क्लॉकवाइज है, यहाँ पे लिखा मैंने। और राइट हैंड साइड में इक्वल टू लिखा है आर डी मल्टीप्लाई बाय 1000, बराबर। आर डी क्या है यहाँ पर, आर डी इज अ फोर्स, और डिस्टेंस कितना है 800 प्लस 200 इट इज 1000। तो वो है एंटी क्लॉकवाइज, तो वो राइट हैंड साइड में लिखा है मैंने, दिख रहा है, आर डी मल्टीप्लाई बाय 1000। यहाँ से आर डी का वैल्यू निकालना है, 3676 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइड बाय 1000। इट इज कम आउट एज आर डी इक्वल टू 735.29, 735.29 न्यूटन। अभी आर डी मिल गया है, तो फिर आर ए निकाल सकते हैं, बिकॉज आर ए प्लस आर डी दिया है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ से आर ए निकाल सकते हैं हम। इक्वेशन नंबर 1 में आर डी की वैल्यू पुटअप करना है, ठीक है ना। पुटअप द वैल्यू ऑफ आर डी इन द इक्वेशन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर ए। तो आर ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है 3676.47 मल्टीप्लाई बाय सॉरी माइनस 735। सो आर ए मिलता है 2941। हाँ, जो 17182। सो आर ए का वैल्यू यहाँ पे मिल गया। और यहाँ पर आर डी का मिल गया, है ना। तो कैसे निकाला ये पता चल गया आपको, आर ए और आर डी। तो वो वैल्यू डायरेक्टली किताब में डायरेक्टली लिखे हैं। इफ यू सी द बुक, बुक को आप देखते हो तो आर ए की जगह पर डायरेक्टली आपको ये वैल्यू लिखी हुई दिखेगी, 2941। और आर डी की जगह पर आपको मिलेगा 735 न्यूटन। वो डायरेक्टली लिखा है वहाँ पर। ओके, उसके बाद में कंसिडर करेंगे इन वर्टिकल प्लेन मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है हमें। ओके, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमें निकालना है, तो हम इन वर्टिकल प्लेन में हम राइट डाउन बेंडिंग मोमेंट एट बी, राइट डाउन बेंडिंग मोमेंट एट बी। बी के जगह पर बेंडिंग मोमेंट कितना रहेगा, राइट डाउन 2941। आर ए का वैल्यू है 2941 मल्टीप्लाई बाय 200। 200 क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। कैलकुलेशन करने के बाद आ रहा है 588.236 न्यूटन एम एम आ रहा है, 588.236 न्यूटन एम एम। ये बेंडिंग मोमेंट एट बी हो गया। वैसे ही बेंडिंग मोमेंट एट सी निकालना है। तो बेंडिंग मोमेंट एट सी निकालना है, 2941 मल्टीप्लाई बाय 800 माइनस 3676 मल्टीप्लाई बाय 600। बेंडिंग मोमेंट एट सी, सी की जगह पर बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है, ये तो आपको पता ही है, शायद मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में पढ़े हो तुम, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो रहती है ना, उसका है ये बेंडिंग मोमेंट एट सी, 2941 मल्टीप्लाई बाय 800 माइनस 3676 मल्टीप्लाई बाय 600। सो दोनों कैलकुलेशन अगर से करते हो तो 147,062 न्यूटन एम एम आता है। यू कैन क्रॉस चेक इट।
रहा है अनिकेत? वैल्यू बेंडिंग मोमेंट सी डायग्राम में जाना है। डायग्राम कहाँ पर है? ऊपर में। अब सी की जगह पर तुम बेंडिंग मोमेंट लोगे तो, हम क्या करते हैं? हाँ, हाँ, तो यहाँ पर हमने जब बी का लिया था तब क्या कंसिडर किया था? 2941 मल्टीप्लाई बाय ये ना, 2900 या। तो हम क्या करते हैं कि ए की जगह, पहले ए की जगह पर क्या रहेगा? बेंडिंग मोमेंट जीरो रहेगा, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड को हम कंसिडर करते हैं। मान लो कि लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी फोर्सेस है उस फोर्सेस को कंसिडर करेंगे। हम मूव करेंगे लेफ्ट साइड से राइट साइड में, बराबर। मूव करेंगे लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ। लेफ्ट साइड से हम राइट की तरफ जब जाएंगे, पहला पॉइंट हमें आएगा ए पॉइंट। तो ए पॉइंट के तरफ जब हम जाते हैं, वहां पे हम खड़े रहते हैं ए पॉइंट। तो लेफ्ट साइड में हमें क्या फोर्सेस है? ए के बाजू में लेफ्ट में एक भी फोर्स नहीं है, अगर से डायग्राम को देखते हो तो, है ना। डायग्राम को हम देखते हैं कि राइट साइड में मैं देखो मत, लेफ्ट में देखो। डोंट सी ऑन द राइट साइड, सी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ए। ए के लेफ्ट साइड में एक भी फोर्स नहीं है, इस वजह से ए की जगह पर बेंडिंग मोमेंट जीरो है। ठीक है, तो ए की जगह पर हमें वैल्यू मिलेगा बेंडिंग मोमेंट का जीरो। अभी जाएंगे ए से लेकर बी की तरफ। जहां पर ए पे खड़े थे, अभी बी की तरफ जाना है। अभी बी के जब खड़े हो, बी के पास खड़े होकर देखना है कि लेफ्ट साइड में कितने फोर्सेस है। डोंट सी ऑन द राइट साइड, लेफ्ट में देखना है। में फोर्स मिलता है आर ए मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस 200। तो इस वजह, हाँ, आर ए मल्टीप्लाई बाय 200, इसलिए हमें वो बेंडिंग मोमेंट एट बी मिलेगा। यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा है बेंडिंग मोमेंट एट बी। आर ए का वैल्यू लिखा है यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 200। अभी उसी डायरेक्शन में हम जाते हैं। अभी बी से लेकर सी की तरफ जाते हैं। अब सी के पास खड़े होते हैं। डोंट सी ऑन द राइट साइड, सी ऑन द लेफ्ट साइड। अभी हमें दो फोर्सेस मिलेंगे। आर ए मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितना है? 100, 800। वो हो गया सॉरी, क्लॉकवाइज है ना, एक फोर्स हो गया। और एंटी क्लॉकवाइज क्या हो गया? 3676 मल्टीप्लाई बाय बीसी का डिस्टेंस कितना है? 600 है शायद, है ना। ठीक है, तो वो कैलकुलेट किया है, तो वही इक्वेशन में लिखा है। देखो, यू कैन सी द इक्वेशन। कहाँ गया? नीचे दिख रहा है। तो इन दोनों का कैलकुलेशन किया तो आपको बेंडिंग मोमेंट एट 10 ही मिलेगा, राइट साइड में नहीं देखना है। तो ये 147,062 आता है। आ रहा है? सो दिस इज द बेंडिंग मोमेंट एट द सी। अभी उसी प्रकार से बेंडिंग मोमेंट अब हम डी की तरफ जाएंगे। अभी मैं बोलता हूँ कि आपको कैलकुलेट करना है बेंडिंग मोमेंट एट द डी, तो वो वैल्यू आएगा आपका जीरो। इफ यू कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट एट सर द डी, डी पॉइंट के जो बेंडिंग मोमेंट आप कैलकुलेट करके देखो, वो जीरो ही आएगा। मैं कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप कैलकुलेट करते हो तो जीरो आता है। क्या? सर डी के अकॉर्डिंग ना, हेलो, हाँ बोलो। डी के अकॉर्डिंग जीरो आ रहा है सर। हाँ, तो जीरो ही आता ना, जीरो आया था, वही तो बोल रहा हूँ ना मैं। हाँ हाँ सर। बेंडिंग मोमेंट एट द डी इज इक्वल टू जीरो, यही तो बोल रहा हूँ मैं। कैलकुलेट हाँ करने की जरूरत नहीं है। किताब में आपको जब जाओगे ना, किताब में, बुक में मैं आपको बताऊंगा कि ए की जगह पर और डी की जगह पर बेंडिंग मोमेंट जीरो है। इज इट क्लियर? यस सर। तो वही डायग्राम में आप किताब में जब भी इसके बाद जाऊंगा तो वहां पे आपको दिखेगा कि ए और डी के जगह पर जीरो है और बी और सी की जगह पर वैल्यूज आए हैं। वो डायरेक्टली वैल्यूज वहां पर लिखे हैं। ये कैसे आए हैं, ये यहाँ पर बताया है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो अभी उसी प्रकार से हमें क्या करना है? अभी जैसे जो भी प्रोसीजर हमने वर्टिकल प्लेन के लिए ली है, सेम प्रोसीजर हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए अडॉप्ट करना है। ओके, तो ये डायग्राम है आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन का। ड्रॉ दिस डायग्राम। लिखो हॉरिजॉन्टल प्लेन, डायग्राम निकालो, ये ए बी सी डी। डी डिस्टेंसेस लिखो वहां पर, 800, 200, जो डिस्टेंसेस दिए हैं प्रॉब्लम में।
200 सी की जगह पर फोर्स लिखो 7352 सी की जगह पर। ठीक है, वही आया है ना सी प्रॉब्लम में, सी की जगह पर जो फोर्स आया है 7352। ठीक है, ए की जगह पर लिखो नीचे से आर ए और डी की जगह पर आर डी। ए की जगह पर आर ए और डी की जगह पर आर डी। ठीक है, डायरेक्शन है नीचे से ऊपर, आर ए और आर ए की, आर डी की। ठीक है, ओके। सिमिलरली सॉल्व करना है आपको, आर ए प्लस आर डी है ना, इक्वल टू 7352, बराबर। आर ए और आर ए प्लस आर डी इक्वल टू 7352। अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद टेकिंग मोमेंट एट द ए की जगह पर मोमेंट लेना है, ए की जगह पर मोमेंट लेंगे तो क्या आ रहा है 7352 फोर्स है, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितना है 800, क्लॉकवाइज आ रहा है ये, है ना। और एंटी क्लॉकवाइज है आर डी मल्टीप्लाई बाय 1000, आर डी मल्टीप्लाई बाय 1000। यहाँ से अपने को आर डी मिलेगा, चेक आउट द आर डी 7352 multiplied by 800 divided by 1000, you get the value of RD. वन थाउजेंड से डिवाइड करने के बाद कितना, 5882.35 न्यूटन। तो आर ए का वैल्यू यहाँ से आर डी का वैल्यू पता है तो आर ए निकाल सकते हैं, लेकिन इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करो, आर ए का वैल्यू निकालो 7352 माइनस 5882, आर ए मिलेगा 1470। ठीक है, 1470, पॉइंट जो भी रहेगा उसका टेंशन मतलब, 1470, 1470 न्यूटन। तो आर ए और आर बी मिल गया है। उसी प्रकार से फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन में बेंडिंग मोमेंट एट बी, एट कैपिटल बी, तो उसी प्रकार से करो 1470 मल्टीप्लाई बाय 200, 1000 राइट डाउन बेंडिंग मोमेंट एट बी मल्टीप्लाई बाय 200। डायग्राम में देख सकते हो वही मिल रहा है, 294116 आ रहा है न्यूटन मिलीमीटर। So next is bending moment at C. 1470 multiplied by 800, 1470 point something multiplied by 800, 1176 464 आ रहा है, 1176 464 न्यूटन मिलीमीटर। ठीक, तो ये हो गया बी। डायग्राम में आप चेक कर सकते हो, डायग्राम को वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, डी और ए की जगह पर 0 रहेगा। ठीक है, ए की जगह पर 0 है और डी की जगह पर बेंडिंग मोमेंट 0 है। ये डायग्राम को आप चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक करके। ठीक है, तो यहाँ का पोर्शन खत्म हो गया। अभी हम बुक की तरफ जाएंगे कि ये वैल्यूज वहाँ पे बुक में डायग्राम में दिखा है। ओके, ये समझ गया आपको कैसे निकाला है?
अभी हाँ, ठीक है, तो मैं अभी बुक में जाता हूँ। लेट वेट, वो पेज आने तक। ये पेज आ चुका है। जो डायग्राम मैंने वैल्यूज बताई थी, वो डायग्राम में कन्वर्ट हुई है। यू कैन सी द डायग्राम। ये डायग्राम पे हम देखते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, जहाँ पर हमें आर ए का वैल्यू जीरो दिख रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन में पहले, और आर डी का वैल्यू जीरो है, और बी के जगह पर 588232 आया है, और सी के जगह पर 147058 आया है। बराबर वही वैल्यू हमने लिया है। और हॉरिजॉन्टल प्लेन में सिमिलरली ए के जगह पर जीरो है और डी के जगह पर जीरो है। यहाँ बी के जगह पर आ रहा है 294,118, और सी की जगह पर 11,176,470। तो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, जो आपने मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा होगा। वही प्रोसीजर है ये, नथिंग अदर, कुछ भी अलग नहीं है। ओके, तो ये दोनों भी पॉजिटिव लूप में आ रहे हैं ऊपर की साइड में। ठीक है, इसका जो लूप है ये ऊपर के साइड में है। तो इन दोनों का हमने क्या किया है, तीसरी वाली जो डायग्राम देखते हो, इफ यू सी द उसके नीचे वाली डायग्राम, रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इफ यू लुक एट द डायग्राम, रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में हमें क्या मिलता है, दोनों का एडिशन करना है, हॉरिजॉन्टल का और वर्टिकल का। तो ए की जगह पर जीरो जीरो है, तो डेफिनेटली यहाँ पर जीरो आएगा। इज इट क्लियर? ए और बी में हॉरिजॉन्टल प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में जीरो है, तो यहाँ पर भी जीरो आएगा ए की जगह पर। और डी की जगह पर भी जीरो जीरो है, राइट हैंड साइड में भी वहां पर भी जीरो आएगा। बराबर। ओके, उसके बाद में हम जाते हैं बी पॉइंट की जगह। बी पॉइंट पे हमें क्या कर रहा है, 588,232, 588,232 और 294,118, ये क्या है, बी के वैल्यूज है। दोनों का ऐड करो, ऐड दिस टू वैल्यूज एट द पॉइंट बी। आ रहा है क्या, 657,664? ऐड करो, 588,232 प्लस 294,118, 6। हाँ, हाँ, कितना आ रहा है? डबल एट आ रहा है। तो इन्होंने क्या किया, फिर अंडर रूट लिया क्या, देख सी, अंडर रूट लिया है, सॉरी। यहाँ पर इन्होंने बेंडिंग मोमेंट निकालते वक्त अंडर रूट लिया है। ओके, बेंडिंग मोमेंट एट बी निकालते समय अंडर रूट ऑफ 588,232 स्क्वायर प्लस 294,118 स्क्वायर। टेक दैट वैल्यू, 6,664 है ना। हाँ, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे आएगा, तो वो वैल्यू यहाँ पे दिख रही है आपको, दिखा, 657,664 आ गया बी, रिजल्टेंट में। उसी प्रकार से बेंडिंग मोमेंट सी की जगह पर कितना आ रहा है, तो 147,058 का स्क्वायर और 1176 470 का स्क्वायर। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी करो कैलकुलेशन। ये आ रहा है 108। ये वैल्यू यहाँ पर हाँ, यही वैल्यू आपको यहाँ मिलेगी, यहाँ पर लिखिए देखो,
11,856,25.4 सी की जगह पर, ठीक है। तो ये हो गया ये दोनों पॉइंट, और दोनों पॉइंट को लाइन से ज्वाइन करना है, रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालना है, ठीक है। इज इट क्लियर? अभी यहाँ पर डी वाला देखते हो टॉर्शनल मोमेंट डायग्राम। तो यहाँ पे क्या मिलता है हमें एक ये वैल्यू दिख रहा है 330882, है ना, दिख रहा है ये वैल्यू, हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है। तो ये वैल्यू कहाँ से निकाली है हमने, यहाँ पे आप जाते हो, ये वैल्यू जो दिख रही है ना, टॉर्शनल मोमेंट डायग्राम, एकदम लास्ट में बोले। तो ये वैल्यू कहाँ की है पता है, ये यहाँ पर निकाली, देखो टॉर्क किधर गया अपना, 350 पे था ना पेज, 1 मिनट, थ्री फिफ्टी 360, सॉरी 360 पे था। यहाँ पर थे हम, यहाँ पर हमें ये एम टी का वैल्यू शायद, वो कहाँ गया एम टी, टॉर्क, हाँ यहाँ पर है, ये यहाँ पर 330882, ठीक है। तो ये हो गया टॉर्क, ठीक है, एम टी का वैल्यू। तो ये वैल्यू हमें मिल गया है, तो दोनों वैल्यूज हमें पता है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट का ये हो गया। अभी यहाँ पर हमने जो वैल्यू लेना है स्टेप नंबर 4 में, डायमीटर हमें निकालना है, एकदम लास्ट स्टेप में हम शाफ्ट डायमीटर निकालना है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन लिखो, shear stress इक्वल टू, राइट डाउन दिस इक्वेशन, shear stress इक्वल टू 16 डिवाइड बाय पाई डी क्यूब अंडर रूट ऑफ एम बी स्क्वायर प्लस एम टी स्क्वायर। tau max इक्वल टू 16 अपॉन पाई डी क्यूब अंडर रूट ऑफ एम बी स्क्वायर प्लस एम टी स्क्वायर। ठीक है, अभी हमारे पास प्रॉब्लम में टाउ मैक्स दिया है, पुट अप दैट वैल्यू 66.67 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, ठीक है, पाई डी क्यूब अंडर रूट में। अभी एम बी का वैल्यू क्या लेना चाहिए और एम टी का वैल्यू क्या लेना चाहिए, एम टी के वैल्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ध्यान से सुनो। एम टी के प्रॉब्लम में कोई वैल्यू, एम टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 36 सॉरी 330882, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एम बी का जो वैल्यू क्या लेना चाहिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम बी। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये 11,856,25 दिख रहा है ना। तो ये वैल्यू क्यों लिया, तो यहाँ पर आप डायग्राम में जा सकते हो, रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में दो वैल्यूज है यहाँ पर, एक है 657 समथिंग और दूसरी वैल्यू है 1185 समथिंग। तो इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम है, बड़ी है, वो वाले कंसीडर करेंगे, जो बड़ी है इसलिए वो बड़ी वाली वैल्यू कंसीडर की है यहाँ पर। क्लियर हो गया? एमटी तो सेम है क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, ये सेम, इसलिए एमटी के वैल्यू को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पुट अप दैट वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी, डी का वैल्यू मुझे बताइए। हाँ, उसको सॉल्व कीजिए, कैसे सिंप्लीफाई करता है, सिंप्लीफाई कीजिए उसको, डी का वैल्यू आता है। पहले डी क्यूब मिलेगा आपको, पहले डी क्यूब मिलेगा, और डी क्यूब के बाद में उसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा जब डी मिलेगा। हाँ नीचे 16/5 डी क्यूब, हाँ डी क्यूब है वो।
ओके, तो आ रहा है ये, पहले डी क्यूब मिलेगा, फिर डी मिलेगा आपको डायमीटर 45.47 मिलीमीटर। सो तो आपको यहाँ पे राउंड अप भी कर सकते हो कि 45 का डायमीटर अगर से 45.47 नहीं है तो 50 का डायमीटर आप स्टैंडर्ड डायमीटर में ले सकते हो, ऐसा आप कर सकते हो। तो ये प्रॉब्लम है, पर इट इज आस्क फॉर 20 मार्क्स, 20 मार्क के लिए आता है। हाँ, इसलिए तो इतना लंबा है ना। सो इट इज आस्क फॉर 20 मार्क्स। अब अब खाली, हाँ सब हाँ वो लिखना पड़ेगा सब कुछ। हाँ लिख के निकाल, लिख सकते हैं पर अभी नहीं, अभी लिख भी सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं पर वो कैसा है, अभी निकालना तो है आपको, वो कोई बड़ी बात नहीं है कि आप आ रहे कैसे निकाला है यार, साथ में भी लिख दिए तो अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। आपको कैसा करना है कर सकते हैं, लेकिन मेरे हाँ समय तो लगेगा। अब तो कैसा एग्जामिनर बोलेगा, अब ये यहाँ पर एग्जामिनर सोच सकता है कि 2941 कैसे आया, तो ऐसा भी आपने किसी से कॉपी किया हो सकता है। मान लो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन मान लो आपने किसी से कॉपी किया, आगे वाले लड़के से कॉपी किया और आंसर लिख दिया, तो एग्जामिनर को तो नहीं पता है कि आपने खुद से निकाला है कि कॉपी किया है। तो हो सकता है, पर मेरे ख्याल से अगर से पर 20 मार्क्स है तो उतना वेटेज गिरता है, 20 नंबर भी मिल रहा है, नो प्रॉब्लम को। आप 20 नंबर देखो तो मेरे ख्याल से आपका 80 मार्क, 80 मार्क का अगर से आपका पेपर है, तो 20 मार्क में तो आपका 1/4 हो रहा है ना। 80 मार्क पेपर है ना आपका, 80 मार्क्स का है ना आपका डीएमई का, तो उससे 20 मार्क में तो 1/4 हो गया, तो 1/4 मतलब आप 3 घंटे का पेपर है तो 1/4 कैलकुलेट कीजिए कितना हो रहा समय उसके लिए, कितना हो रहा 3 घंटे का 1/4, 45 मिनट, 45 मिनट। हाँ, तो उतना उतना समय आपको मिल रहा है तो उतने में कर सकते हो मेरे ख्याल से, है ना। इसलिए निकाले वाला बेटर रहेगा। और इसी टाइप के प्रॉब्लम रहते हैं, ज़्यादा कोई बड़े नहीं रहते, थोड़ा बहुत वेरिएशन मिलेगा आपको। यहाँ पर कहाँ वेरिएशन मिलेगा आपको, यहाँ के पुली है, पुली की जगह पर हम क्या कर सकते हैं, गियर्स माउंट कर सकते हैं, गियर्स। हाँ, गियर्स माउंट कर सकते हैं, तो गियर में फिर वो गियर के फोर्सेस आते हैं। हाँ वेट, वेट भी आ सकता है एडिशनल, वेट ऑफ द गियर या वेट ऑफ द पुली, ये भी ऐड हो सकते हैं उसमें। तो ये थोड़ा सा आगे हो सकता है। अभी कभी गियर, ये डिजाइन ऑफ शाफ्ट है कि आई थिंक यूनिट नंबर 1 2 3 में आएगा शायद, यूनिट नंबर 3 में। हाँ हाँ, लेकर हाँ, फर्स्ट वाले में लीवर है, सेकंड वाले चैप्टर में, अभी ऐसा है, मुझे जैसे जैसे कंफर्टेबल है मैं उसके हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। आगे पीछे एक दूसरे चैप्टर का कोई रिलेशन नहीं है, इस, इस वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि कौन सा भी चैप्टर कभी भी पढ़ा है। तो जस्ट आई सेक ऑफ इंफॉर्मेशन की है आपको, 20 नंबर के लिए आता है, आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 5 वगैरह आता है शायद, यूनिवर्सिटी का पेपर आप सर्च करो, क्वेश्चन नंबर 5 या 6 में आता है सीधा। ठीक है, हाँ एक एक ही आएगा, 20 मार्क का एक ही न्यूमेरिकल आ गया पूरा, थ्योरी नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगी। नहीं नहीं नहीं, थ्योरी नहीं आएगी। तो अभी देखते हैं और 2 3 वैरायटी के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो इसमें की और तो उसमें और क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक, बोलो। हाँ तो आपको मैं पहले चैप्टर तो उसमें जनरली आपको थ्योरीज ऑफ फेल्योर पे क्वेश्चन आता है एक, या दूसरा आपका इकोनॉमिक्स एंड स्टडी, वो बताया था ना मैं आपको एक बार, बीच में जनरल कंसिडरेशन और इकोनॉमिक्स, बीच में थ्योरी लेक्चर जब स्टार्टिंग में पढ़ाए थे, तो उसमें अब थे ना, तो वहां से आप, या फिर ये इसी बुक में भी लिखा भी है वो, मतलब ये जो बुक है यहाँ से आप पढ़ रहे हो, उसमें भी स्टार्टिंग में इकोनॉमिक कंसिडरेशन, जनरल कंसिडरेशन या मशीन डिजाइन प्रोसेस, ये पॉइंट वाइज लिखा है पूरा बुक में। ऐसा मुझे कुछ, ऐसा बहुत बड़ी बात, मतलब अभी आप तुम मतलब सर्च कर सकते हो, अब थोड़ा बहुत है उसमें, ज्यादा नहीं, 4 या 5 नंबर के लिए आता है वो, एक एक थ्री क्वेश्चन ऐसा कुछ। तो ठीक है, हाँ थोड़ा सा उसको सिस्टमेटिकली पॉइंट वाइज अरेंज करके लर्न करना पड़ेगा। तो वैसे भी इस सब्जेक्ट में वैसे भी आपको न्यूमेरिकल जमते हैं,
तो न्यूमेरिकल 80% न्यूमेरिकल ही है इसमें, 20% ही थ्योरी आती है। हाँ, मोस्टली पहले ही चैप्टर में थ्योरी है, बाकी चैप्टर में थ्योरी नहीं आती जनरली। ठीक है? तो आज के लिए ठीक है इतना। ओके?